Now let's move on to the next topic, that is human resources. We have already seen about the chapters, and first chapter 1 is studied about how humans and resources are important and they depend on each other. Second means the land resources, type of lands, है ना? How many types of lands are there? What is their use? What is soil erosion? What is the topsoil? What is importance of soil layers? And what is what is the economy? The third chapter we have seen about agriculture, types of soil required for agriculture, types of crops and seasons. And the fourth chapter we have studied about the mineral and mineral resources, types of different minerals used for industrialization and human resources. Now all these features are, all these things are used up by the population. So the human resources which we use are for supporting the human race and population. So the term population here is stands for the population is of a place is counted in the basis of how many people live there. है ना? How many people live there. The population is related to a particular place. The number of people living in regional unit such as village, city or country is called population of that place. Means what is question? What is population? So we will simply say the number of people living in that area defines the area population. ठीक है? और क्या लिख सकते हो आप लोग? व्हाट इज पॉपुलेशन में क्या लिख सकते हो? सिंपली क्या लिखोगे? द पॉपुलेशन डिफाइंस द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया. ऐसा लिखा छोड़ देना. क्या लिखोगे? डिफाइंस द number of people living in that area. So to define population area is important, है ना? The population becomes important as a human resource when the human intelligence and skills are used for development of society and their capabilities are used in some productive work. अब यहाँ पर देखिए ह्यूमन इंटेलिजेंस स्किल्स का बात कर रहे हैं तो फोर्थ इकोनॉमी है भारत, है ना? ये यहाँ की गंदगी देख सकते हो सिटीज़ में कैसी स्थिति है. चाइना भी हमसे ज़्यादा पॉपुलेटेड था पहले, लेकिन उन्होंने अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस और स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास की जगह को सिक्योर रखा हुआ है. जिससे आप समझ सकते हो ह्यूमन इंटेलिजेंस और स्किल्स का नंबर ऑफ पॉपुलेशन से कोई लेन देन की जितना उसमें डेवलपमेंट होगा. दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द हाउ पीपल आर यूज्ड. Many questions are can be asked regarding population of a place. For instance, what is the total population of the country? At what rate is it increasing or decreasing annually? What is the average life expectancy of people there? And how long a life are people expected to have? Then on average, what is the female and male ratio in the population? What is the ratio of children, youth, and old people in it? What is the ratio of producers, working people in class? What is the ratio of people living in the city? Those living in the villages there, how many people among them are literate and how many people them are receive higher education, how many people are them poor and how many are rich. आप देख सकते हैं इन सभी के लिए आपको एक एरिया डिफाइन करना हो. एरिया में डिफाइन करके सारे सवालों को उठा पाओगे तो इसको कंपेयर कर पाओगे. सो फॉर पॉपुलेशन टू डिफाइन पॉपुलेशन यू रिक्वायर्ड एन एरिया where and how we get all information. Nowadays we nearly every country in this world conducts a periodic census. What is census? अब क्वेश्चन आएगा what is सेंसस. ये क्वेश्चन आएगा आपके लिए, इसको लिखना है आपको. सेंसस इज द काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ पीपल लिविंग देयर, है ना, ऑन ए गिवन एक्सपेंडिचर टाइम ऑफ 5 to 10 years. क्या है? सेंसस इज द काउंटिंग नंबर ऑफ पीपल लिविंग देयर एवरी 10 years, है ना, इन विच द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज गैदर्ड. ठीक है, इसका डेफिनेशन होगा. सो लास्ट सेंसस इन 2010 में हुआ था, है ना, जिसके अनुसार हमें पॉपुलेशन कितना है पता चल जाएगा आगे चल के. लेट्स सी द अब देखिए क्योंकि शुरुआत कैसे सेंसस करने के लिए कौन आते हैं? जो आंगनबाड़ी की महतारी होती है, आंगनबाड़ी वर्कर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं. ये लोग क्या करते हैं? घर घर जाकर सेंसस करते हैं. आपके घर में कितने मुखिया हैं, कितने, है ना, घर में मतलब मुखिया कौन है, मुखिया कितने पत्नियाँ, कितने बच्चे हैं, उनके कितने बच्चे हैं, और लिस्टन करते हैं पूरा आसपास के एरिया में, उसको कंडक्ट करते हैं. इससे पता चलता है कि उस एरिया में कितने लोग रहते हैं. सबसे पहली बात तो, है ना. अब सिटी में तो सिटी के हिस्से हो जाओगे, गाँव में तो गाँव के हिस्से में हो. सो इससे क्या है, आपको एक कन्फर्मेशन आ जाएगा कि आपने कितने लोगों का सेंसस किया, कितने लोगों को गिना है. देखिए इन द इंडियन सेंसस वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज गैदर. इसमें क्या क्या गैदर किया जाता है? तो देखिए व्हाट इज सेंसस
व्हाट्स इट्स इम्पोर्टेंस। इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस पैराग्राफ में यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, इससे ज़्यादा कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या क्या मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ, है ना। गैदर द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कंट्री, है ना। और क्या है सेकंड पॉइंट, द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन सेपरेटली, द नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, है ना। कौन से लोग कौन से प्रकार के काम में काम करते ऑक्यूपेशन, क्या लोगों ने एक गांव से दूसरी जगह में जाना शुरुआत किया है डिफरेंट कारणों से, ऐसे बहुत सारे रीजन आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन द रूरल एंड अर्बन एरियाज, population density, number of people engaged in different occupations, the rate of increase or decrease in population, ये सब क्या है, इस सब सेंसस से पता चल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कितने इसमें इसके अलावा क्या पता कर सकते हो, इसमें सेंसस हमको पता चलेगा पीपल, है ना, कैसे कितने एजुकेटेड हैं, कितना ऑक्यूपेशन में है, इकोनॉमिक कंडीशन, एज, सेक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप किससे पता कर सकते हो, सेंसस से पता कर सकते हो। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंस में सब लिखिए क्या सेंसस आपको क्या क्या बताता है। नेक्स्ट द थर्ड पार्ट इज टोटल पॉपुलेशन एंड रेट ग्रोथ। क्या है, सब सेंसस हम करते हैं तो पता चलता है कि पूरे एरिया में कितना पॉपुलेशन है ना। फिर पूरे एरिया के बाद मतलब डिस्ट्रिक्ट में कितना है, फिर डिस्ट्रिक्ट मिलाकर स्टेट में कितना है, स्टेट मिलाकर फिर इंडिया में कितना है, और पिछले सेंसस से कंपेयर करके पता चलेगा कि कितना ग्रोथ हो गया, रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, ठीक है। सो यू आर अनेबल टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और विलेज विद द हेल्प ऑफ सेंसस owing to the method of door-to-door collection of information such as the data is census acknowledged as the most credible। घर घर जाकर इसको कलेक्ट करने के लिए सबसे करेबल चीज़ है। द लास्ट सेंसस इंडिया टुक प्लेस इन 2011 अकॉर्डिंग टू विच टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री एट द टाइम वाज 1.121 crores दैट और एंड 2 lakhs। सो इसमें देखिए और क्या तरीके से चल रहे हैं, देयर वेर 102 करोड़ 77 लाख पीपल इन द इंडिया इन 2001। अब इसे 10 साल पहले जो उसमें कितने लोग थे, इतने लोग थे, तो कितना इंक्रीज हो गया, 20 करोड़ लोग बढ़ गए सीधा सीधा मान के चलिए। थर्स द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इंक्रीज बाई 17.67 प्रीवियस 10 ईयर्स में। इसको हम निकाल सकते हो कंपेयर करके, ठीक है। अब देखिए क्या है, ऑफ द टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन अर्थ, है ना, 17.5% पीपल लिव इन इंडिया, ठीक है ना। 100 में से 17.5% लोग भारत में रहते हैं। ओनली कंट्री विथ ए बिगर पॉपुलेशन दैन इंडिया इज चाइना वे 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स। अब देखिए अब चाइना को टेक ओवर कर लिया है भारत ने, ये और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देन 2011 पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज दिस, कितना है 2.5 करोड़, ओवर 2 करोड़ 50 लाख पीपल इन विच अबाउट 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है। एंड इससे बढ़कर कितना हो गया, 22.6 बढ़ गया। हाउएवर डेकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ऑफ द छत्तीसगढ़ इतना, मतलब 20 साल पहले 2000 में, अगर 2011 से पहले माना जाए तो 10 साल पहले तो छत्तीसगढ़ बना हुआ है, तो डेकेडल तो निकाल सकते हो। तो 10 से 1990 से कंपेयर करो छत्तीसगढ़ एरिया जितना भी है उसमें कितने लोग रह रहे हैं, उसमें 22.6% लोगों की वृद्धि हो गई मान के चलिए, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री ऑफ सेंसस क्या है, मेंशन द फर्स्ट सेंसस इन द टर्म्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स इन स्वीडन। स्वीडन 1749 में पहला सेंसस होता है, ठीक है। तो याद रखिए द फर्स्ट सेंसस टुक इन द वर्ल्ड इज मॉडर्न टाइम्स इज स्वीडन 1749, इसमें आएगा आपके 1 वर्ड में। In the United States of America, the process of conducting a regular census began in 1980s, years after it began in India in 1972। सेंसस करने का तरीका क्या है, जो लोग गवर करते हैं उनको पता होना चाहिए कितनी की जनता कितनी क्या, ताकि वो चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, उनके साथ काम कर सके। Countries like England and France had begun the task of regulating conducting periodic census yearly 71 years before we did, ठीक है। So the government of India accepted this principle in 1965, the idea of census, the idea of census. The questionnaire for the conducting census was prepared during the same year. However, the census was conducted for the first time in 1872. अब ब्रिटिश काल में हुआ है, याद रखिए ना। It could not be implemented completely. The process of conducting complete census was carried out only 9 years after that in 1881. So actual census कब होता है भारत का पहली बार 1881 में। The actual census of India taken place in 1881। ये 2 पॉइंट आपके हो गए, इस 2 पॉइंट को याद रखिए। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड। द लेटेस्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया 2011 अकॉर्डिंग टू विच द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज 121 लाख करोड़, है ना, ये अभी पुराना है। अब देखिए सेंसस ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज एंड दोज इन लिविंग इन विलेजेस। इंडिया इज स्टिल country largely inhabited by villagers, where 69% of the people live in villages and 31% lives in the cities. When the country became independent, at that time only 17% of the people lived in the cities। अब देखिए अब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय केवल 17% लोग थे
अब कितना हो गया है? 60 सालों में 31 हो गया, मतलब कितना गुना बढ़ गया वो कुल मिला के, मतलब कितना परसेंटेज बढ़ गया? अब मान सकते हैं कि 14% बढ़ गया, ठीक है, 14% इंक्रीज। फ्रॉम दिस वी कैन एस्टिमेट हाउ अर्बनाइजेशन हैज इंक्रीज इन इंडिया। हमने पहले चैप्टर से पढ़ लिया था किस तरह से पहले बैरन लैंड्स को या हॉलो लैंड्स को काट करके बैरन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया, सिटीज़ बन गई बैरन लैंड्स में, तो अर्बनाइजेशन तो बढ़ गया है। What proportion of the population of Chhattisgarh lives in city? Only 23% of the people in the state lives in the city, while 20% lives in the city in 2011. तो कितने लोग आए? केवल 3% इंक्रीज हुआ है पिछले 10 साल में, ठीक है। ये सब कुछ खास जानकारी नहीं है, ये एक कंपेरिजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सेक्स रेशियो है ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स रेशियो, जेंडर रेशियो भी कहते हैं इसको। और क्वेश्चन आया व्हाट इज जेंडर रेशियो, इसी को लिखना आप लोग, ठीक है। क्या है? सेक्स रेशियो टेल्स अस हाउ मेनी वुमेन्स देयर आर पर 1000 मैन इन अ गिवन रीजन। तो व्हाट इज सेक्स रेशियो? इज द रेशियो बाय विच वी कैन, इज क्या लिखेंगे व्हाट इज सेक्स रेशियो में? क्वेश्चन लिख लीजिए व्हाट इज सेक्स रेशियो, तो क्या आंसर? ठीक है, प्रत्येक 1000 व्यक्तियों के लिए कितनी महिलाएं अवेलेबल हैं शादी करने के लिए, दैट इज सेक्स रेशियो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस सेक्स रेशियो इन स्वीडन इज 1006, इन जापान इज 1067, इन नेपाल इज 1073, वाई इंडिया इज 9740, कम है 60 गुना कम है, 60 लोग कम हैं। मतलब अगर 1000 लोगों के लिए 60 लोगों की कमी हो रही है। Normally, in a healthy society, number of women and the number of men should be equal. If the ratio is less in society, which means relatively less attention is given to the nutrition, education, health, and the other needs of the girls, women in society. So, due to which the lifespan is shorter. अब देखिए महिलाएं कम होने कारण किस कारण है, उनके ऊपर कम ध्यान दिया जा रहा है, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन के ऊपर, और इसके अलावा वुमेन्स को सोसाइटी में रखा नहीं जा रहा है, इसलिए उनकी लाइफ स्पैन क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, कहीं तो गायब हो जाती है बहुत सारी चीज़ें। तो इससे क्या आप समझ सकते हो कि सोसाइटी क्या है, ढंग से डेवलप नहीं हो रही है। According to 2011 census, sex ratio in our country is 940, which means that there are only 940 women per 1000 men. However, the sex ratio varies widely. स्टेट वाइज क्या होता है, वो अलग हो जाता है। सेक्स रेशियो इन सम स्टेट्स मोर देन द नेशनल एवरेज। क्या है? केरला में 1084 है, मतलब वहाँ केरला में 84 महिलाएं ज़्यादा हैं कंपेयर टू 1000 मैन। तमिलनाडु में 5 कम है। आंध्र प्रदेश इज 991, छत्तीसगढ़ 991। अदर हैंड हरियाणा 877, लोवेस्ट इन हरियाणा, उस हिसाब से अनलिटरेड जगह वही है। गुजरात 920, 912 एंड राजस्थान 926, यहाँ भी कम है। इन दोनों, ये 3 स्टेट्स हैं, हरियाणा, गुजरात एंड राजस्थान। दिस आर द 3 स्टेट विच हैव द हाई इलिटरेसी लेवल। वहाँ अनहाइजीनिक लोग रहते हैं, अंधविश्वासी लोग भरे रहते हैं, जो महिलाओं के पास ज़्यादा क्रूरता निभाते हैं। उनके वहीं यहीं पर 3 स्टेट है जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा चाइल्ड मैरिज किया जाता है। The sex ratio is less than the national average, so we are able to see that this data that in what particular state the situation of women is weaker, and we can formulate a plan to improve this. इस तरह सेंसस करने से क्या कर सकते हो आप, उनके देख पाओगे कौन सा महिला कौन सा स्टेट में ज़्यादा बुरी स्थिति है, और वहाँ पे उनकी स्थिति सुधारने के लिए हम काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में देखिए, देख सकते हैं सिंपल से यहाँ पर बताया गया है कि 1901 से लेकर 2001 तक, 1901 में 972 महिलाएं हुआ करती थी मान लीजिए, है ना, और 2001 में 940 तक आ गया। सो आज़ादी के बाद ये दिक्कत ज़्यादा होने लगी। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, देखिए इसके कारण नीचे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। When we look at the figures, we find out the number of women in proportion to the men has been declining in the India for a long time, which is indicative of the increased discrimination against the women. अब देखिए क्वेश्चन है, why women number is डिक्लाइनिंग इन इंडिया। इसका आंसर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्या है, विच इंक्रीज इन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन सोसाइटी।
Women has to face discrimination in education and development. Census figure shows this discrimination has the biggest adverse effect on girls of small age. चाइल्ड मैरिज जो है, जिसको हम लोग बाल विवाह रोकने का प्रयत्न करते हैं, ये सबसे बड़ा उसका कारण है. द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 इज 1000 to 914. बहुत ही कम है, बहुत ही कम है. जहाँ लड़कों को घर का वारिस चुनने के लिए प्रयास किया जाता है, जहाँ अनपढ़ गंवार लोग बच्चों को कम महत्व देते हैं और उनको ये समझ में आता है कि बुढ़ापे में लड़के उनका साथ देंगे, लड़कियां तो वहाँ कर चली जाएंगी, वे लोग और ज़बरदस्त तरीके से लड़कियों पे कम ध्यान देते हैं. और इसके अलावा जो भ्रूण जो क्या बोल सकते हैं, अर्ली डेथ होती है लड़कियों की, खासी है तो गर्भ में मार दिया, या फिर तो गर्भ में जो मारे उसको तो नहीं कि नहीं होता है, पैदा होने के बाद भी बच्चों को अमेंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं कहीं कहीं पर, या गाँव से लड़का बेच भी दिया जाता है. ऐसा बहुत सारे इलीगल तरीक़ों से क्या होता है, लड़कियों का आविष्कार हो जाता है. ठीक है, वी हैव सीन दैट कंडीशंस आर डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री, है ना. इसलिए हमने देखा था केरला की जगह वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पर्याप्त, तो वहाँ पर महिलाएं ज़्यादा हैं पुरुषों से. If we look at the Kerala, Tamil Nadu and others, we find that such factors are relatively better healthcare facilities available there. The active role of women in society, economic self-reliance, etc. have contributed to the highest sex ratio in the states. अब इसके विपरीत में आप लिख सकते हो कि नंबर डिक्लाइन कर, इसको उल्टा लिख दीजिए, है ना. सोसाइटी में एक्टिव रोल नहीं मिल पा रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं मिल पा रहा है, सेल्फ रिलायंस और इंडिपेंडेंटली खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, उनको हेल्थ ढंग से नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए उनका सेक्स रेशियो बिगड़ता जा रहा है. ये इसका आंसर हो जाएगा. अब देखिए, in this इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए ना. In this sharp contrast of this, there are some parts of the country where the sex ratio has fallen to worrisome levels. अब देखिए यहाँ पे क्या है इसका आंसर. In most northern state in western India, such as राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, the sex ratio is less than the national average due to the factors such as dominance of patriarchal society. मर्दों की ज़्यादा सोसाइटी डोमिनेंट है. fewer economic opportunities for women, historical long prevailing conditions of inequality and others. तो ये सारे फैक्टर्स अब इसमें लिख सकते हैं. अब देखिए छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है. इन द सिचुएशन छत्तीसगढ़ इज बेटर कंपेयर टू अदर स्टेट्स कंसिडरिंग दैट द सेक्स रेशियो इज 991 हियर. डिस्ट्रिक्ट्स विद अ लार्जर ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ द बस्तर द सेक्स रेशियो इज 1000 और इवन हायर. अब देखिए बस्तर में जहाँ पुरुषों को महिलाओं के समान रखा जाता है, जहाँ पुरुष और महिलाओं में समानता रखा, प्रकृति को पूछते हैं, मानते हैं कि महिलाएं पुरुष दोनों ही प्रकृति के लिए हैं, उनको मिलने से प्रकृति बनेगी, तो वहाँ पर उनके खिलाफ कोई इधर गलत कार्य नहीं होता. इसलिए वहाँ बस्तर ट्रैवल एरियाज में 1000 की ज़्यादा, मतलब 1000 वहाँ पुरुषों की कमी पड़ जाती है. बिलासपुर सेक्स रेशियो लिटिल लोअर. अब बिलासपुर देखिए, बिलासपुर जो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट था, डेवलप स्टेट था, वहाँ पर अंधविश्वास जो चीज़ें यहाँ ऊपर हमने पढ़ी हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, इसीलिए यहाँ पर सेक्स रेशियो कम है महिलाओं की. इवन इन छत्तीसगढ़ सेक्स रेशियो हैज़ बीन कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग, तो इन द 0 to 6 फिगर्स इन द एज ग्रुप. देखिए अब हमने पढ़ा था कि बढ़ा हुआ था करके, लेकिन अब क्या होते जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं. देखते जाइए, 1984 में इतना था, अब इतना हो गया, है ना, लड़की बच्चियों का. तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, यहाँ भी पैट्रिकल जो ऊपर आप देख रहे हैं आजकल तो कैसा सिस्टम चल रहा है संसार में, है कि नहीं. कौन से प्रकार के लोग जो डोमिनेंस कर रहे हैं पॉलिटिकल सेक्शंस में जगह जगह, उनकी सोच कैसी, आइडियोलॉजी कैसे, कौन सा आइडियोलॉजी को फॉलोअप करते हैं, क्या वे इन आइडियोलॉजी को फॉलोअप करते हैं. ये आइडियोलॉजी को फॉलोअप करने बहुत से लोग को वहाँ छत्तीसगढ़ मिल जाएंगे आजकल. तो ऐसा क्या होता है इस स्थिति में, सबसे पहले सेक्शन पड़ता है वीकर सेक्शन पे, और दिक्कत होता है वुमेंस को. इस वजह से दिक्कत होती है. दिक्कत होने से क्या होता है, ये जो रेशियो गिरते चले जाता है. ठीक है. Thus, while the figures of the sex ratio illustrate how the relatively better position of the women, here the figures out for 0 to 6%, 0 to 6 years age group to point the fact that here too little girl child mortality rate has increased in the last 3 decades. इस कारण क्या है, ये मोर्टालिटी मतलब क्या होता है, व्हाट इज मोर्टालिटी, दिस इज डेथ रेट इन गिवन एरिया. And next is demography, birth rate in given area. इन दोनों टर्म्स को याद रखिए, ये बहुत जरूरी है सेक्स को समझने के लिए. देयर इज इंक्रीज इन गर्ल चाइल्ड मोर्टालिटी, डेथ रेट ज़्यादा है लड़कियों की, इसलिए गिरती चली जा रही है. एंड द सेक्स रेशियो इन दिस एज ग्रुप हैज़ बीन कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग. और 0 से 6 साल के बच्चे, उनको कम खाना पीना ट्यूशन ध्यान दिया जा रहा है, बच्चे दिन दिन कमज़ोर तो चली जा रही है. और फिर से गांव में घटिया सोच पैदा हो जाती है ना, कि लड़कियां तो पराया धन होती हैं, इधर उधर चुचलाबाजी फलाना ढीम के चक्कर में क्या होता है, इनको
ढंग से मैनेज नहीं किया जाता और बच्चों की मृत्यु हो जाती है। On the other hand, this figure showed how social position of women and the girls is becoming better. But on the other hand, at the same time, girls are being prevented even from being born due to misuse of modern techniques. मॉडर्न टेक्निक्स की गलती की वजह से भी लड़कियों की मृत्यु हो रही है। ये तो एक ही रीज़न लिख दिया उन्होंने, बहुत सारे और भी रीज़न है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्री नेटल बर्थ, बिफोर बर्थ। प्री नेटल पैदा होने से पहले ही कई लोग क्या जानना चाहते हैं कि लड़के हैं कि लड़कियां। अगर लड़कियां होते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है पेट के अंदर ही। खासकर आजकल नियम हो गए हैं कि अगर जिनके 2 बच्चे होंगे उनको ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। सो 2 बच्चों को चाहत में जो लोग भरे बैठे हैं, है ना, जिनको ये चाहत है उनके परिवार को वंश आगे बढ़ाने के लिए कोई बेटा चाहिए, तो वे लोग क्या करते हैं, गलत तरीक़ों से जान बचाना और प्राइवेट करप्शन को प्रैक्टिस करके लड़कियों के भ्रूण को जान लेते हैं, उनके सेक्स को जान लेते हैं कि वो गर्ल हैं कि बॉय हैं। इस परिस्थिति में उनको पेट ना मार देते हैं फिर से कि बच्चे नहीं पैदा, उनका जॉब भी नहीं जाएगा, उनको ये आस भी पूरा हो जाएगा। तो ये जब से नियम ज़्यादा बन गया है तब से तो और डेथ के भयंकर ज़्यादा हो गए हैं। देखते जाइए एज कंपोजिशन देखिए, है ना, रेशियो ऑफ चिल्ड्रंस यूथ एंड ओल्ड पीपल। क्या लिखा हुआ है, ये बड़ा सिंपल है, इसको सिर्फ पढ़ने की आवश्यकता है। फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस द पॉपुलेशन ऑफ रीजन डिवाइडेड इनटू 3 broad एज ग्रुप्स। क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रुप, सेकेंड इज यूथ एंड ओल्ड ग्रुप, थर्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रुप। ठीक है, ये दो यूथ एंड ओल्ड ग्रुप ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों अलग है। सो बॉयज़ अलग हैं, गर्ल्स ग्रुप 2 ग्रुप हो गए, यूथ एंड ओल्ड ग्रुप एक अलग ग्रुप हो गया। देखिए क्या है, इन सोसाइटी पीपल विथ मैक्सिमम प्रोडक्टिव एबिलिटी आर यंग पीपल हु कैन वर्क इन होम्स, फील्ड्स, फैक्ट्री एक्सेट्रा। चलिए चिल्ड्रंस एंड ओल्ड पीपल डिपेंडेंट ऑन देम। अब देखिए चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं किन पे, यूथ पे। ठीक है, द चिल्ड्रन विल बिकम द प्रोड्यूसर ऑफ द फ्यूचर एंड दे विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द रोल। अब उसको छोटे से पौधे की तरफ थोड़ा सा सजो करके रखना पड़े जब तक वो खुद से इंडिपेंडेंटली उग ना जाए, अब इतना ना मजबूत हो जाए कि लोग उसको आसानी से ना काट सकें। ठीक है, तो देखना पड़ेगा। अब देखिए जब ये जो प्रॉब्लम है इनकी कमी की, वो किस पे डिपेंड करता है, बच्चों की नर्चर करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, यूथ जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर ओल्ड पीपल को ध्यान देगा। तो ओल्ड पीपल की सोच अगर अच्छी नहीं हुई तो यूथ की सोच भी क्या जाती है, कभी ना कभी खराब हो जाती है ना। और यूथ ने ध्यान नहीं दिया तो भी बच्चे नहीं बढ़ जाएगा। सो यूथ एंड ओल्ड पीपल आर 2 important कैटेगरीज इन द पॉपुलेशन विच आर रिक्वायर्ड टू नर्चर दी चिल्ड्रंस। ठीक है, in order to formulate such policy it is necessary to know that how population of the country and state is distributed among this age of। देखिए चिल्ड्रंस के बारे में लिखा हुआ है, चिल्ड्रंस ऑफ लेस देन 15 years of age are included in this region, in this group में ना, बच्चे कितने साल के, कितने साल तक हैं, 15 साल के। नॉर्मली पीपल ऑफ दिस एज ग्रुप आर डिपेंडेंट ऑन द पीपल ऑन द अदर ग्रुप्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ द एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अदर एमिनिटीज फॉर द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर मेड बाय द अदर पीपल। किसी अदर पीपल कौन है यहाँ पर, यूथ और ओल्ड पीपल। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए इन बच्चों को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंसिडर नहीं, आप पढ़ने वाले बच्चों को मान के चलिए। However, the prevalence of child labor contributing to the production of goods and services in many areas cannot be denied। लेकिन चाइल्ड लेबर से क्या होता है, बहुत से इलाकों में इकोनॉमिक सेक्शन में बच्चे काम कर रहे हैं, बचपन से काम कर रहे हैं। अब देखिए यूथ को देखिए, पीपल ऑफ दिस एज वेरी फ्रॉम 15 to 59 years विच आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। अब देखिए यू विल नोटिस दैट पीपल इन दिस एज ग्रुप आर द मोस्ट एक्टिव, यूजुअली द पीपल इन द अदर 2 एज ग्रुप्स आर डिपेंडेंट ऑन देम। पूर्ण रूप से जो ओल्ड हैं, ओल्ड पीपल और चिल्ड्रन हैं, इसको डिपेंडेंट करते हैं। दिस एज ग्रुप इज मोर मोबाइल ऑल्सो, इट इज द पीपल इन दिस ग्रुप हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अटेम्प्ट टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, है। Old group, this a group includes people above 60 years or more. After the age of 60, the work efficiency of people begins to decline, and the most people in this age group who are not employed and who do not have a strong economic foundation depends on the need for their young ones। young people के ऊपर क्या होते हैं, वो डिपेंड हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछेंगे, वाई children population of girls तो आप इन दोनों यूथ और ओल्ड एज के ग्रुप के आइडियोलॉजी के बेस पर इसका जवाब दीजिए। ठीक है, आपको बताया हुआ है।
In social science, population aged pyramid is used to show the distribution of population of a country. Look at the graph of age pyramid in India 2014 given below. It shows the number of men and number of women after every 4 years. You can see that in 2014 the population of child and the youth in India. देखिए चाइल्ड और यूथ कितना दिया हुआ है, ऐसे परसेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है। ये वेस्टर्न अफ्रीका का है, ये इंडिया का है और ये वेस्टर्न यूरोप का है। देखते जाइए ये रेशियो कैसे हो जा रही है, ये फिक्स नहीं था, ये बढ़ते जा रहा है, ये है ना इस तरह से। ये कैसा है, वेस्टर्न यूरोप में कैसा होता जा रहा है ना। ये इस शेप को, इस शेप का मतलब क्या होता है, सी इवन द यू 14 द चिल्ड्रन यूथ इन द पेपर मोर देन द ओल्ड पीपल। देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये इंडिया है, ये वुमेन है और ये क्या है, एज है, यहाँ पर एज लिखा हुआ है ना। सो ये जो देखते जा रहे हो बच्चे हैं ना, ये क्या होते जा रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। यूथ और बच्चे ज़्यादा होते हैं, बूढ़े लोग मरते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि डेथ एज क्या होगी, डेथ एज या मोर्टालिटी एज कम हो गई है इंडिया में। वेस्टर्न में भी देखिए कैसा है, जो 35 से 39 साल के बच्चे हैं या वो लोग बाग हैं ना 40-45 तक, ये 80-50 के लोग तो ठीक ठाक हैं। अब वेस्टर्न अफ्रीका में देखिए, वेस्टर्न अफ्रीका है ना, मतलब निचले स्तर के अफ्रीका की बात कर रहे हैं। अफ्रीका में दिखता है ये बच्चों की या वुमेन्स की, यूथ की संख्या बहुत ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा है। अगर पढ़ाया है फिजिकल चीप लेबर आसानी से मिल जाता है। अब चीप लेबर है तो पैसा कम है, पैसा कम है तो भाई बूढ़ों के खिलाफ लोग क्या नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं रख पाएंगे, उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। देखिए कितना कम है, कम एज में निपट जा रहे हैं सारे के सारे। तो इस ग्राफ से समझ सकते हैं कितनी बुरी स्थिति है टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से, है ना, उम्र के जीवन की शैली के हिसाब से, है ना। अब अगर आप डेथ रेट निकालते चले जाओगे, देखते चले जाओगे, जिसमें आपका मात्रा कम दिखती चली जाएगी। अब समझ से आइए, डेथ रेट कम है इसका मतलब क्या है, पैसा कम है, पहली बात तो सॉरी, पैसा ज़्यादा है, डेथ रेट कम है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर डेथ रेट किसी उनकी कम है, ज़्यादा लोगों को मिल जाएंगे इस उम्र के। यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है, और जो वुमेन होते हैं वे ओल्ड एज तक अपने पर निर्भर रखते, खुद पर निर्भर रहते हैं। भारत और वेस्टर्न अफ्रीका में कैसे हैं वे, भारत में तो भाई परंपरा चली आ कि बड़ा एक सेक्शन में निर्भरता खत्म हो जाती है ना। वेस्ट अफ्रीका में कैसा है, ड्यू टू पुअर कंडीशंस ऑफ मनी एंड लार्ज फैमिली, है ना। लार्ज फैमिली से क्या होता है, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, हम चीप लेवल ज़्यादा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। सो उससे क्या होता है, लोग जो है बड़े होकर के अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख पाते, उनको छोड़ देते हैं। एक एक परिवार में सैकड़ों बच्चे पैदा करते हैं और उनको छोड़ देते हैं। इस चक्कर में उनका डेथ रेट कम हो गया, डेथ रेट ज़्यादा हो गया है। सो इन कारणों से आप ग्राफ देखकर समझ पाएंगे कि इस पैराग्राफ में लिखा क्या है, ठीक है। लेट्स स्किप टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ से देखिए इस बारे में लिखा है, if we compare this to the situation of Western Europe, and another disturbing fact emerges. You can see that in Europe, around 36% people are aged more than 50 years. But if you look at the situation of the children there, you find the proportion of children in the population has been consistently declining. अब देखिए इसमें क्या दिखता जा रहा है, बच्चों की संख्या यूरोप में गिरती चली जा रही है। इसके कारण क्या है, people in Europe have a very long life, but so few children are being born that the population will be keep declining, and gradually the old people will the majority। इसका मतलब क्या है, जितने जल्दी लोग वहाँ पर क्या हो जाएंगे, मरेंगे, उतना जल्दी वहाँ पर नए बच्चे पैदा होंगे, ऐसा कहने का तात्पर्य है। सो अगर किसी एक एज ग्रुप, तीनों में से एक एज ग्रुप का क्या हो जाए, डेथ रेट बढ़ जाता है, तो दो का कम हो जाएगा और उनका बर्थ रेट बढ़ जाएगा। इसीलिए वेस्टर्न यूरोप अफ्रीका में देखिए यूथ और चिल्ड्रन भर भर के हैं और ओल्ड एज वाले मरते चले जा रहे हैं। भारत में कैसा है, भारत में भी वैसा है, यूथ और चिल्ड्रंस कैसे होते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं और बूढ़े मरते चले जा रहे हैं। वेस्टर्न यूरोप में उल्टा है, उसमें क्या है, बच्चे मर रहे हैं तो ओल्ड एज बचते चले जा रहे हैं। इसके कारण क्या है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, देखिए इस कारण लिखा हुआ है।
सो देयर ने भी सेवरल रीजंस फॉर द डिफरेंस बिटवीन द सिचुएशन इन वेस्टर्न अफ्रीका एंड वेस्टर्न यूरोप. द फर्स्ट क्या है देखिए, इनकम is that the income level and the healthcare services in Europe are so good that the most people live in to reap their old age, while in Africa ये die due to poverty and poor healthcare facilities. The infant mortality rate is higher. अब ये देखिए, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ होनी चाहिए, जहाँ पर डेवलपमेंट का होना चाहिए, उसका उल्टा सबसे ज़्यादा कहाँ है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट? यूरोप में सबसे ज़्यादा है. कारण क्या है? वे अपने जीवन में बच्चे कम पैदा करके खुद ब खुद यूथ को जीना चाहते हैं, उनके यहाँ दबाव नहीं होता है ना. और वे लोग क्या है, ओपन सर्कल, ओपन रिलेशनशिप में रहते हैं, इसीलिए वो मल्टीपल टाइम अपने हर चीज़ को इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि कोई भी उम्र के लड़का लड़की जो है अगर रिलेशनशिप में रहते हैं तो वे अगर प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उनको बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए किसी को परमिशन नहीं चाहिए. तो मल्टीपल अबॉर्शन से क्या होता है, लड़कियों की, मैक्सिमम लड़कियों की वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस क्या जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. इसीलिए द मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैव द लार्जेस्ट मोर्टालिटी रेट एंड द हाइएस्ट इन प्रेगनेंसी चांसेस ऑफ वुमेन. इसका मतलब क्या होता है कि लड़कियां सबसे कम वहाँ पर क्या होंगी, प्रेग्नेंट होने की क्षमता रखेंगी. इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पर लेबर ज़्यादा है और वहाँ पर परिवार के सेक्शन ज़्यादा होते हैं, है ना, वहाँ पर ऑलरेडी फैसिलिटीज़ कम हैं और वहाँ पर सारी चीज़ें ओपन रिलेशनशिप एक्वायर तो किया जाता है लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं कराया जाता, तो वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा है और वहाँ पर लेबर ज़्यादा है, वो लोग काम भी ज़्यादा करते हैं. और डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होते हैं, लोग बाग काम कम करते हैं, ऑफिस में बैठते हैं ज़्यादा, तो फिजिकल उनका सेक्शन कम हो जाती है, बॉडी मसल काम नहीं करता है. इस सेक्शन में क्या उनका जो डेवलपमेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो क्या है, जीरो हो जाता है. तो यहाँ पर टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना. व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंपेयर विथ अफ्रीका एंड यूरोप. इसको समझने से आप पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे. ओके, देखिए, वर्क एंड वर्किंग पॉपुलेशन, क्या लिखा है, वर्क एंड वर्किंग पॉपुलेशन लिखा हुआ है ना, वर्क एंड वर्किंग पॉपुलेशन लिखा हुआ है. अब इस सेक्शन में देखते जाइए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मायने क्या है ना. इट इज़ वेरी पजलिंग क्वेश्चन अस टू हु शुड बी कंसिडर्ड ए वर्कर और प्रोड्यूसर. इसमें क्या है, काम करने वाला और एक पैदा करने वाला कौन है. ये सबसे सिंपल एग्जांपल है, अनाज पैदा करने वाले कौन है, फार्मर है ना. और वर्कर कौन है, जो उस अनाज जो पैदा किए हैं उसको सब जगह पहुंचाते हैं, वे वर्कर है. समझे कि नहीं. Most people do not have regular work and their nature of their work keeps changing. Sometimes people have gainful employment at other times they remain idle. इसका मतलब क्या है, लोग काम धाम करने के हिसाब से अपने नेचर को बदल लेते हैं. कई लोग रेगुलर जॉब करते हैं, कई लोग काम बीच में रुक कर करते, कई लोग काम ही नहीं करते हैं. ठीक है. इन दिस कैटेगरी दे शुड बी एक्सक्लूडेड. क्या है, जो लोग एम्प्लॉयमेंट गेन करने के बाद, है ना, और बहुत समय खाली बैठते हैं, उनको इस कैटेगरी से हटा देने कैसे. There can be no precise solution of this puzzle, but Census Commission has used fictional definition for this purpose. क्या है, कौन वर्किंग है और कौन प्रोड्यूसर है, इसके लिए सेंसस ने एक तरीका निकाला. उसका काम है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, वर्क हैज़ बीन डिफाइंड एज ए पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. सो वर्क क्या है, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव काम धाम, है ना. दिस पार्टिसिपेशन कैन बी बोथ थ्रू फिजिकल एंड मेंटल लेबर, तीन तरह से हो सकता है. ऐसे ब्रॉड कैटेगरी वर्क इंक्लूड्स नॉट ओनली द एक्चुअल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज बट ऑल्सो द जॉब्स ऑफ सुपरविजन एंड मैनेजमेंट, है ना. एक क्या है, मेंटल है, काम धाम देखना, ध्यान देना, सब चीज़ों में आता है सुपरविजन और मैनेजमेंट. इट ऑल्सो इंक्लूड्स पार्ट टाइम हेल्प इन फार्मिंग, हाउस होल्ड इंटरप्राइजेज, अनदर एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इवन अनपेड वर्क. लेकिन अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, इसमें आपकी इकोनॉमी क्या होनी चाहिए, ग्रो करनी चाहिए. ठीक है. देखिए, इन दिस वे ऑल दोज एंगेज इन एक्टिविटीज मेंशन अबव आर वर्कर्स. इसलिए क्या कहलाते हैं वे सारे, जो भी इंसान जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब क्या कहलाएंगे, वर्कर्स कहलाएंगे. ठीक है. अब देखिए, इवन द पीपल कम्युनिटी एंगेज इन फार्मिंग और मिल्क प्रोडक्शन फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन आर कंसिडर्ड वर्कर्स, बिकॉज इससे वो डेली हाउस होल्ड काम कर रहे हैं, लाइक कुकिंग, फिशिंग एक्सेट्रा,
और अपने घर को साफ रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं है ये। इससे आप किसी चालों का फ़ायदा नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपना फ़ायदा कर रहे हो। सो इकोनॉमिकली एक्टिविटी किसमें आएगा? जिसमें आप चालों का फ़ायदा हो। इसलिए ये लोग क्या कहलाएंगे? वर्कर्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है, जो घर में काम धाम करते हैं। According to 2011 census, 30% of people are mainly engaged in productive work and about 10% are partially engaged in productive work. About 60% of people are not engaged in productive work. अब देखिए 60% ज़्यादा लोग कैसे हैं? ऐसे हैं जो घर में बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं। इनमें कोई भी इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं होती। ये केवल 30 से 40% लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिकल ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कौन से लोग आएंगे? हाउस वाइफ, ठीक है। ये इकोनॉमिकली कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं सेक्शन में, लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें उनको उनका ध्यान रखते हैं, ठीक है। लेकिन हाउस वाइफ अगर घर पे है, अगर वो बच्चों को पढ़ा रही है, तो बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए क्या वो इकोनॉमिकल ग्रोथ पे प्रोडक्शन नहीं करती है? बच्चों को ध्यान देना और लेवर करने के साथ साथ वो घर के सेक्शन को भी देखती है और अपने घर के खर्चों को भी चलाती है। तो इस परिस्थिति क्या है? हाउस वाइफ भी कैसी है? एक वर्कर है। लेकिन सेंसस ने क्या किया? इसको नेगलेक्ट कर दिया, ताकि वो आसानी से इस करियर से इसको नेगलेक्ट करके इकोनॉमी बॉडी जो ऑफिस में बाकायदा काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको क्या कर सके? शॉर्ट टर्म इकोनॉमी ग्रोथ करने वाले लोगों को वर्कर की कैटेगरी में डाल सके, ठीक है। सो अगर हमसे पूछा जाए कि इज हाउस वाइफ इज अ वर्कर और नॉट, तो यस लिख के आंसर लिख देना, ठीक है। छत्तीसगढ़ हियर 32% पीपल आर मेनली एंगेज इन प्रोडक्टिव वर्क, बट while about 60% partially performing productive work and thus 52% people are not engaged in productive work। ये वो कैटेगरी लोग जो घर में बैठे रहते हैं, ठीक है। इसमें ओल्ड एज भी हैं और यूथ भी है। यूथ में कौन है ज़्यादातर? और इसमें बच्चे भी आएंगे ना, 50% में बच्चे भी हैं, हाउस वाइफ भी है और ओल्ड पीपल भी हैं जो काम नहीं कर पाते। अब देखिए, इसको समझने के लिए कि ऐसा कैसे हो गया, ये प्रोडक्टिव वर्क में कैसे एंगेज नहीं हो पा रहे हैं, इसको समझने के लिए हम देखेंगे लिटरेसी रेट क्या होता है। और लिटरेसी रेट क्या होता है? According to the census 2011, the literacy rate of the countries was 74%. That is to say 3 out of 4 person are educated। क्या है? 4 में से 3 इंसान कैसे हैं? पढ़े लिखे हैं। If you look at the figures of the previous census, you will see that India also made considerable progress in the direction after independence. In the first census after independence, the literacy rate was found to only 18%। पहले कितना मात्र 18% था। In other words, 82 out of 100% were literate। मतलब केवल 18 लोग ही कैसे थे 100 में से पढ़े लिखे थे, बाकी लोग कैसे थे? गधे का। अब देखो कितना हो गया, अब बढ़कर कितना हो गया, और 2001 तक 64 हो गया। मतलब 100 में से कितने लोग एजुकेटेड हैं? 64 लोग एजुकेटेड हैं। 18 से कितने हो गए? 64 हो गए 60 सालों में, ठीक है। सो लिटरेसी रेट बढ़ने से क्या होता है? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है, इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग होता है ना, वो कॉमन जानकारी सबके लिए यूजफुल है, वो फैलती है। Although our national literacy rate is over 74%, according to 2011 census, it varies from state to state and between men and women। देखिए क्या मैन वुमेन दिखता है ये ना, ये याद रखिए। लिटरेसी रेट अमंग मैन इज 82.14%। और महिलाओं में कितना रहेगा? केवल 65.46%। जितना भी कारण हमने ऊपर पढ़े हैं कि महिलाओं की हत्या क्यों होती है, चाइल्ड पॉपुलेशन की डिक्लाइन, क्योंकि सारे रीजन इसमें आ जाएंगे। अब क्वेश्चन आएगा वाई। अब डिक्लाइनिंग नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लो। तो इसका आंसर आप ऊपर जितने भी आंसर आपने बताया था आपको, किसके लिए? पॉपुलेशन के लिए, क्या है ना, कैसे कम होता है, मॉडलिटी रेट डिफाइन है, उसको इसमें लिखेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में सबसे कम पॉपुलेशन दिख रही है? सिमिलरली लिटरेसी रेट इज सीन डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ। केरला में कितना है? सबसे ज़्यादा है हाई लिटरेसी रेट 93.3%। मिजोरम में भी है, त्रिपुरा में भी है ना, जहाँ स्टेट सबसे ज़्यादा होते हैं। बिहार में सबसे कम है, ठीक है, बिहार में सबसे कम है, राजस्थान झारखंड में सबसे कम है। तो इस तरह समझ सकते हैं कितने कमी है।
जितना जहाँ पर कमी है लिटरेसी रेट, वहाँ उतना ज़्यादा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। देखिए क्या लिखा है। अब हमने पूरा पढ़ लिया है कि डेवलपमेंट क्या होता है क्या नहीं होता, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, व्हाट इज डेवलपमेंट भी क्वेश्चन है ना। डज डेवलपमेंट मीन्स कंटिन्यूस इंक्रीज पॉपुलेशन प्रोडक्शन, इसका भी लिखिए आंसर क्या होता है ना। अब हाउ आर वी टू डिटरमाइन वेदर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज हैविंग ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल और नॉट। ये 3 क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी किताब में दिए, इसको तीनों आपको लिखना है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चंस 1 2 3। बहुत ही सिंपल इसका आंसर लिखना है आपको। जब मैंने चैप्टर 1 2 और 3 में पढ़ लिया है, उसी को मिलाकर लिखेंगे। इस चैप्टर से मिलाकर लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है, इस सबको समझ में नहीं आएगा। देखिए, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन लाइफ कैन बी कॉल्ड डेवलप्ड लाइफ, है ना। तो इसका आंसर देखिए क्या है। टू इकोनॉमिस्ट हैव मेड ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स फाइंडिंग आंसर टू दिस क्वेश्चंस। इन चारों क्वेश्चन के लिए 2 इकोनॉमिस्ट ने आंसर दिया, वाई द प्रोफेसर महबूब उल हक ऑफ पाकिस्तान, प्रोफेसर अमृत्य सेन ऑफ इंडिया। तो अमृत्य सेन बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिनके बारे में बताया जाता है, और दे सेशन करते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में, UNDP में, और मर्जिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या करते हैं, इस दोनों का मानना होता है, हक एंड सेन का, कि डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑफ एनी कंट्री डिपेंडेड ऑन वेदर दे हैड अपॉर्चुनिटीज टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर विशेस, वेदर दे हैड नेसेसरी कैपेबिलिटीज टू एनेबल देम टू फुलफिल देयर विशेस। देखिए, हक वचन का हक क्या करते हैं, द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट एन इंक्रीज इन इनकम बट ऑल्सो टू इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज फॉर मेकिंग चॉइसेस अमंग वेरियस लाइफ ऑल्टरनेटिव्स, है ना। कोई पैसा कमाना नहीं है, वो सारे अधिकार और उनको अपनी इच्छा का मान रखने का अवसर देना है, वही क्या है, सही डेवलपमेंट है। द पर्पस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज टू एनहेंस ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड देयर मेक देयर फुलेस्ट पॉसिबल यूज़। क्या है, इंसान का डेवलपमेंट को पूर्ण रूप से जागृत करना, उनको सब तरफ से मौका देना, ताकि वे नए टैलेंट को क्या कर सकें, निर्भर कर सकें और उसको आगे बढ़ा सकें। दे कंसिडर दैट फॉर दैट दिस इज नेसेसरी टू इन्वेस्ट इन पीपल्स एजुकेशन एंड हेल्थ। इसके लिए क्या करना चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, और मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज एंड पर्टिकुलरली एम्पावरमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन में ध्यान देना चाहिए। इन 4 तरीकों से आप क्या कर सकते हो, डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हो। देखिए, इसका आंसर इसमें इन 4 में लिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे शब्दों में लिखा हुआ है। देखिए और क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू मेजर दिस डेवलपमेंट द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, है ना, फॉर्मुलेट फॉर सम बेसिक क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या है, हेल्थ। व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ पीपल, और टिल व्हाट एज डू यू पीपल लिव ऑन एन एवरेज इन ए कंट्री, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कहते हैं। ठीक है, इट इज बिलीव दैट ए हेल्थी पर्सन शुड यूजुअली लिव्स टिल एन ओल्ड एज। तो सेकंड क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, वो है एजुकेशन। कितना एजुकेशन उसने क्या किया, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर्मल एजुकेशन हैव पीपल हैव हैड ऑन एवरेज, बट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एजुकेशन दे आर लाइक टू रिसीव। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द दिस एस्पेक्ट ऑफ एसेस बाई पर कैपिटा इनकम। हम पर कैपिटा पहले पढ़ चुका है, तो इनकम इकोनॉमिक चैप्टर हमने देखा था। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, जिसकी जितना ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होगा उतना उसका डेवलपमेंट होगा, है ना। क्योंकि उतने ज़्यादा उसके पास साधन होंगे अचीव करने के लिए, पैसे से आप क्या कर सकते हो, साधन को अचीव कर सकते हो। द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ पर्सन, है ना, जो पर कैपिटा इनकम हम लोग कहते हैं, ये तो हम जानते हैं आप लोग। द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज इवेल्युएटेड बाय टेकिंग ऑल दिस 3 एस्पेक्ट्स टुगेदर इनटू कंसिडरेशन। तीनों का मान करके क्या क्या जाएगा, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट का क्राइटेरिया निकाला जाएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया ऑक्यूपाइज द 130th पोजीशन इन द वर्ल्ड एंड रिसीव 609 पॉइंट्स। बहुत ही ऊपर है इंडिया जो है, और डेवलपमेंट बहुत ही कम है, अभी डेवलप हो रहा है। नॉर्वे हैज़ रिसीव द हाइएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स 944। इट लीड्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट। नॉर्वे इज द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, द एक्सपेक्टेड लाइफ एट बर्थ 68 ईयर्स इन इंडिया वाइल 81.6 ईयर्स इन नॉर्वे। अब वहाँ 81 ईयर्स ज़्यादा, इसका कारण भी क्या, वहाँ पॉल्यूशन कम है, हेल्थ केयर फैसिलिटी ज़्यादा अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छा है, लाइफ क्वालिटी अच्छी, स्ट्रेस कम है,
है ना, एम्प्लॉयमेंट बरोबर है, तो वहाँ पर लाइफ ज़्यादा है लोगों की। भारत में उसका उल्टा है सीधा सीधा। एन एडल्ट पर्सन इन इंडिया हैज़ हैड 5.4 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑन एवरेज, की 5.5 सालों पढ़ता है एवरेज में। वाई अदर करस्पॉन्डिंग फिगर्स नॉर्वे 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। हाँ, नॉर्वे में ज़्यादातर मैक्सिमम लोग एवरेज में लोग कितना बुरा से बुरा से दिन कितना पढ़ते हैं, 12 साल पढ़ ही लेते हैं। अब देखिए, द पर कैपिटा एनुअल इनकम ऑफ इंडिया इज़ 5497 अमेरिकन डॉलर्स। ठीक है, साल की कमाई इतनी है $5,497 की मात्र। और इनकम ऑफ नॉर्वे कितनी है, 64,992 अमेरिकन डॉलर, बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग इससे कितने पीछे हैं, 100-150 गुना पीछे हैं कि बहुत पीछे, बहुत ही पीछे हैं। ठीक है, देखिए, however many other ways that can be used to assess the human development of a country, such as keep tracking of literacy rate of malnutrition, nutrition, children and adults, infant and child mortality rate, maternal mortality rate, ये जो भ्रूण हत्या होता है, चाइल्ड वूम डेथ, है ना, ये सबसे क्या कर सकते हो, डेवलपमेंट को मार्क कर सकते हो। लेकिन जो 3 क्राइटेरिया ऊपर दिए गए हैं, है ना, फूड, हेल्थ, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, ये 3 आर द मेन क्राइटेरियाज। अब क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द क्राइटेरियाज टू, क्या है क्वेश्चन, लिख लीजिए। तो क्या क्या लिखेंगे, पहला है हेल्थ, ये दूसरा, है ना, ये तीसरा, चौथा क्या है यहाँ पर, ये है यहाँ से चौथा, पांचवा, छठवा, सेवेंथ। ठीक है, इन 7 को आपको लिखना है। ओके, सो if the level of income is high in a country but the level of education is low, then what kind of problem will arise? अगर क्या है, इनकम ज़्यादा लेकिन एजुकेशन लो है, तो कैसी दिक्कतें हैं। सऊदी अरब में क्या लगता है, इनकम ज़्यादा है वहाँ पर, एजुकेशन लो है क्या। ये पीपल ऑफ द कंट्री आर एजुकेटेड एंड हैव हाई इनकम बट पुअर इन हेल्थ। अब ज़्यादा इनकम तो है लेकिन हेल्थ पुअर है। जैसे यूरोप में देख लीजिए, इनकम तो भयंकर है, एजुकेटेड भी है, लेकिन हेल्थ पुअर है, उनकी प्रोडक्टिव हेल्थ एकदम शून्य है, लगभग बराबर। सो ऐसे कंट्रीज़ में कैसे आप डेवलपमेंट को क्या करोगे और जस्टिफाई करोगे। उसका आंसर देखिए, पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। इन दो क्वेश्चन को देखते आइए, इस दोनों क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, आपको जस्टिफाई करना है आपको। इज लार्ज पॉपुलेशन द रीजन ऑफ पॉवर्टी। चाइना का पॉपुलेशन भयंकर ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट तो भर भर के है, तो ये तो जरूरी है क्या समझने का। देखिए, द इशू हैज़ कैन बी डिबेटेड फॉर लॉन्ग टर्म, मैनी पीपल बिलीव दैट रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन आर लिमिटेड। ये मानना पड़ेगा कि रिसोर्स और जो प्रोडक्शन होता है क्या रहता है, लिमिटेड रहता है, लेकिन उसको लोग जो है अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। if they are used by a large number of people, then each person will derive less benefit from them। क्या है इसका मतलब, अगर रिसोर्स और प्रोडक्शन को लिमिट कर दिया जाए और उसको लार्ज प्रोडक्शन क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, तो प्रत्येक पर्सन को उससे कम फायदा होगा। बट इफ दे आर यूज्ड बाय फ्यूअर पीपल, देन मोर रिसोर्सफुल विल बी अवेलेबल टू ईच पर्सन। तो क्या है, अब चूंकि प्रोडक्शन और रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है ना, तो उसको कम लोग इस्तेमाल करें तो क्या है, वो सभी लोगों के लिए क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। मतलब वो ख़त्म नहीं होगा, एक ऑप्शन रहेगा अवेलेबल है करके। लेकिन ये तो नहीं दिखाता कि वो कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं। अगर प्रत्येक इंसान के पास प्रत्येक चीज़ रहता, हमेशा अवेलेबल है, तो क्या होता, एवरी टाइम एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो उससे मांगे चलता है कि कंट्री के पास क्या है, प्रॉपर रिसोर्स है और वो अवेलेबल है, और वो क्या है, डेवलप कंट्री कहेंगे। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज आर नॉट कॉन्स्टेंट लिमिटेड, है ना। तो इससे समझने का कारण क्या है, सबसे पहली बात है कि प्रोडक्शन और रिसोर्स क्या होते हैं, हमेशा आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे और वो लिमिटेड रहते हैं। दे डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी। For example, when people produce heat by burning food, the source of their energy depends on the forests which are limited। ठीक है, अब नेचुरल गैस फिर भी लिमिटेड है क्योंकि दोज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। व्हेन
coal, mineral, oil and gas began to be used. Then new and huge deposit of energy source emerged and their use led to massive growth in production. अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास फूड वेब की तरह एनर्जी वेब आ गया, है ना। ए वेब ऑफ रिसोर्स मिल गया। अब जैसे वेब रिसोर्स मिल जाता है तो आपका प्रोडक्शन यूनिट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो लिमिट है वो क्या हो जाता है, बहुत हद तक कम हो जाता है। मैंने यहाँ पर किसके बारे में बात किया है, फूड वेब की तरह एक वेब ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात की है ना। भाई पहले लोग केवल लकड़ी पर डिपेंडेंट थे, उन्होंने मिनरल, कोल और गैस इस्तेमाल करना सीख लिया है, तो उनका जो फूड वेब ऑफ रिसोर्सेस है एनर्जी के लिए क्या हो गया, बढ़ गया है। तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और लिमिट भी बढ़ जाएगी, सॉरी लिमिट कम हो जाएगी। तो प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय चांस चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड इनफ वेल्थ कैन बी जनरेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द ग्रोइंग पॉपुलेशन। सो सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से क्या मतलब एक बता रहा है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल वी कैन इंक्रीज अवर डेवलपमेंट। ठीक है। सेकेंडली दूसरा क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन as हाउ मच प्रोडक्शन विल बी देयर इन अ सोसाइटी डिपेंड्स ऑन हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द वर्क फोर्स एंड हाउ आर देयर वर्किंग स्किल्स एफिशिएंसी। तो कुल मिलाकर आपके पास सारे रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन आपके पास लोग नहीं काम करने वाले, तो आपको फिर से प्रोडक्शन करने और उसको लिमिट को कम करने में क्या हो जाएगा, दिक्कत होने लगेगा। द प्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी कैन इंक्रीज देयर मोर स्किल एफिशिएंट पीपल। For example, population of Russia has been declining for several decades, but far from being pleased with this, the government is trying to stabilize and increase the population, है ना। जहाँ रशिया का पॉपुलेशन क्या डिक्लाइन होता है, वहाँ पर क्या होता है, वो सेल्फ रिलायंट कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री है, तो वहाँ पर वे जिस तरीके से काम करवा रहे हैं, है ना, तो उससे क्या हो रहा है, लोगों में स्ट्रेस, सेक्शन और सब जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं बढ़ रही। इसके अलावा लोग फ्री ऑफ रहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज की तरह फ्री हैं, टेक्नोलॉजी में एडवांस है, मॉडर्न कल्चर को मानते हैं, तो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती जा रही है, दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। इट इज गोइंग टू डूइंग सो बिकॉज ओनली लार्ज पॉपुलेशन विल प्रोवाइड पीपल फॉर वर्किंग इन द फैक्ट्रीज, ऑफिसेज एंड फील्ड्स एनबलिंग एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन। सो ऐसा क्या होता है, ऑलरेडी उनकी पॉपुलेशन क्या है, कम है, अपनी अपनी कंट्री की ग्रोथ और सुपर पावर बढ़े रहने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही भयंकर मात्रा में अपने पॉपुलेशन को काम धंधे में लगा देते हैं, फैक्ट्री ऑफिस में काम करने के लिए। तो उनकी क्या होती है, स्ट्रेस के चलते और बॉडी वीकनेस के चलते रिप्रोडक्टिव हेल्थ कम हो जाती है और वे रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे ढंग से और अपनी पॉपुलेशन बढ़ा नहीं पा रहे हैं, है ना। थर्डली, पॉवर्टी इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ रिसोर्सेज बट बाय देयर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखा है, पॉवर्टी, गरीबी जो है रिसोर्स के पास पहुंचने में कमी लगा देती है। एक गरीब इंसान जो है सिलेंडर और कोयला नहीं खरीद सकता, वो लकड़ी काट के जुगाड़ चलाएगा, ठीक है। इसलिए उनका क्या हो गई, रिसोर्सेज की जो वेब है उसकी वेबिलिटी उनके पास चेन की तरह हो गई, और फूड चेन की तरह रिसोर्स चेन बन गया। अब उसी चेन में डिमांड हो जाएगा, और वो चेन वेब पे नहीं, रिसोर्स वेब पे नहीं जा पाएगा, तो उसके पास ऑप्शन की क्या हो गई, कमी हो गई। इस तरीके से ये भी क्या कैसे क्राइटेरिया है जो डेवलपमेंट को कम कर देती है। ठीक है, क्या लिखा है, यही रीज़न है। इस वजह से क्या होता है, even with a small population, if there is inequality in society, then the distribution will be unequal and some people will be remain poor. अब पॉपुलेशन कम हो या ज़्यादा हो, मान लो पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, सिस्टम अलग अलग, जैसे कास्ट सिस्टम हो गया ना, बाहर में वाइट ब्लैक चलता, तो लोग क्या करेंगे, रिसोर्स को होते हुए भी, अवेलेबल होते हुए भी क्या करेंगे, रेसेशन बनाएंगे, रेसेशन करेंगे, है ना। अवेलेबिलिटी रिसोर्स आर देयर बट वे आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, सेक्शन ऑफ डेवलपमेंट हो जाएगा। इससे क्या होगा, वो सेक्शन जो डिप्राइव हो रहा है सब चीज़ों से, वही क्या हो जाएंगे, अनडेवलप हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें और ग्राफ में देखिए, सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री कौन सा है, यूएस, रशिया, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके, इटली, चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये कौन सा ग्राफ है, जो एनर्जी कंजप्शन करता है। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, जिसके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्स वेब है, सबसे कम किसके पास है, बांग्लादेश, और फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया, है ना। तो हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज को क्या कर लिया है, लिमिट कर लिया है। ठीक है, तो जिसके पास जितना ज़्यादा रिसोर्स होंगे उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है, देखिए
If we study this problem on a global level, we find that in reality the poor countries with large population, Bangladesh, India, others, use very little energy resources compared to developed countries like United States. ये सब समझ सकते हो, यूके के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसोर्स का वेब है, इससे लोग ज़्यादा प्रोग्रेस में है, क्योंकि जितना ज़्यादा एनर्जी रिसोर्स का वेब हो जाएगा उसका दाम उतना ही गिर जाएगा और लोगों के लिए वो कॉमनली अवेलेबल हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन हो गया चीज़ों का, इससे क्या होगा, इकोनॉमी उसकी बढ़ गई, ठीक है। पर बेटा जो खर्चा उनको करना पड़ेगा वो कम हो जाएगा और फायदा उनको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। You can see in that while the inhabitants of the countries like Bangladesh, India, Pakistan, Nigeria on an average consume less than 1000 kilos of oil, inhabitants of developed countries consume 2000 to 7000 kilos oil per person of oil per person. If we compare the energy consumption, the total production of population of India with the energy consumption of total population of USA, we find that India consumes only 1/3 of the energy consumed by the America. केवल 1/3 हिस्सा एनर्जी कंजप्शन करता है भारत जो है अमेरिका कंपैरिजन में, और जो कि भारत जो है अमेरिका से लाख गुना ज़्यादा पॉपुलेटेड है, कि हमारे पास क्या नहीं है, एनर्जी के सोर्सेस नहीं है। द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका इज ओनली 1/4 दैट ऑफ इंडिया, स्टिल इट कंज्यूम्स 3 times मोर रिसोर्स दैन इंडिया। इसका मतलब क्या है, इन अदर हैंड इन अदर मैटर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया डू नॉट यूज दिस रिसोर्सेज इक्वली। यहाँ पर क्या है, इन इक्वालिटी, ठीक है। इसलिए बहुत सारे सेक्शन में क्या हो जाती है, रिसेशन पैदा हो जाती है। देखिए अब चूँकि हमारे भारत में 80 करोड़ जो पीपल हैं ये तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनकी आबादी या उन भयंकर ज़्यादा, लेकिन उनके पास पैसे कम है ना। भारत में पैसा कितने लोगों के पास है, केवल 5% लोगों के पास पैसा है ना। नेक्स्ट 50% लोग कैसे मिडिल क्लास परिवार है, बाकी लोग कैसे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। सो इतना बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी है, तो लोग भाई पैसा नहीं है लेकिन मार्केट में अवेलेबल सामान भर भर के है, उसको ले नहीं पाएंगे तो फिर रिसेशन बढ़ जाएगा। अब बिलो पॉवर्टी लाइन में मतलब 80 करोड़ पीपल के बारे में हम बात करेंगे, सो उनमें पैसा कम है तो उनके लिए जो चीज़ें अवेलेबल है उसमें कंपटीशन ज़्यादा है, चीप चीज़ें कम है तो उसमें कंपटीशन भर भर के है, तो वे लोग को उसी में क्या करना पड़ेगा, फूड चेन की तरह उस चेन में ही सर्वाइव करना पड़ेगा। फूड में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और फूड में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फूड वेब का सामान जो ख़राब तो हो ही रहा है, लेकिन उसके कंजप्शन को क्या कर रहे हैं लोग बाग, उसको कम नहीं कर रहे हैं, बैक टू अवेलेबल करते जा रहे हैं। अब अवेलेबल हो रहा है और रखा हुआ है जस का तस, तो उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो इससे क्या होगा, उसके दाम बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे, उसके दाम कम होने लगेंगे धीरे धीरे, है ना। तो बाद में उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम कर दी जाएगी कारण से, और एक समय जब कम कर दी गई है अब वो क्या होने लग जाएगा, उसको दाम फिर से बढ़ जाएगा उसका। अब लोगों के पास पैसा है जिसके पास, लेकिन उसका लिमिट क्वांटिटी क्या हो गया, फिर से कम हो गया, उल्टा हो गया। जो लोग उसको पहले ले सकते थे, है ना, अब उसका दाम ज़्यादा उसको इस्तेमाल नहीं करेगा, उसका प्रोडक्शन को कम कर दिया, लिमिट कर दिया गया। तो लिमिट करने से क्या होता है, जो लोग उसको चेन ऑफ इकोनॉमी जिन लोगों ने खरीदा है उसको, है ना, उसको प्रॉफिट चाहिए, तो लोग क्या करेंगे, उसको स्टोर करके रखेंगे और उसको मार्केट में कम निकालेंगे। इससे क्या होगा, जो ले रहे हैं जिनको पैसा लेने की सक्षम है उनके लिए वो रेट महंगा हो गया। अब दोनों शर्तों में क्या होगा, गरीब लोग तो पहले ही एक फूड चेन में निर्भर हैं, और जो लोग ले सकते हैं वे लोग फूड रिसोर्स के वेब में आ नहीं पा रहे हैं और उनको ले नहीं पा रहे हैं रिसोर्स में होते हुए, वेब में होते हुए भी। तो दोनों शर्तों से क्या होगा, रिसेशन बढ़ गया, है ना। इससे क्या होता है, दोनों वर्ग के लोगों का डेवलपमेंट क्या जाता है, रुक जाता है, और केवल एक ही वर्ग का लोग जो पैसा भर भर के भरे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका क्या होता है, डेवलपमेंट स्टडी रहता है। इसीलिए गरीब और गरीब होते चले जाते हैं, अमीर और अमीर होते चले जाते हैं। समझ आएगा आपको ये, चलिए। If you assume that all people in the world should have the same standard of living as that of the average American middle class people, then would the resource of the world be enough? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए गांधी जी कहते हैं there are enough resources on the earth but to fulfill the need of all its people but not to satisfy any one person greed। इसलिए लालच के लिए कोई भी रिसोर्स कमी हो जाएगी, या लालच भरते भरते लोगों का रिसोर्स खत्म हो जाएगा, नहीं लालच नहीं भरेगा। लेकिन ज़रूरत की इसलिए आप इस्तेमाल करोगे, जैसे आपको एक बॉल चावल खाने की आवश्यकता है एक दिन में, तो आप
30 किलो को 30 दिन पूरा सकते हो, या एक बोल मान लो 1-2 मुट्ठे बन जाता है तो वो 30 किलो चावल आपके लिए साल भर चल जाएगा, है ना। तो आपकी नीड थी, लेकिन आपने कुछ अलग सोच करके सबको लूट कर रख लिया। मान लो आपने सोचा होगा कि आने वाले साल तक कुछ मिलेगा नहीं, आपने फ्यूचर देख लिया, देखना शुरू कर दिया होगा, है नहीं, भले आपको अपने फ्यूचर पता नहीं है। तो अब क्या, चावल को आपने क्या किया, सबको एक्वायर कर लिया। आपने 10 लोगों को मार के 30 किलो 300 किलो चावल एक्वायर कर लिया। आप समय के साथ उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए, सड़ गया वो, फिर आप सड़ जाएगा रखे रखे, लेकिन उसको आप खा नहीं रहे हो, ना खाने दे रहे हो, तो आप क्या हो गए, लालची हो गए, है ना। तो और कहीं से लूटपाट करने जाओगे, इस तरह से क्या कर रहे हो आप, रिसोर्स को ख़त्म करते चले जा रहे हो। जो 1 लाख लोगों का पेट पालने का काम आता, उसको आपने 20-25-30 लोगों ने या 30-40 हज़ार लोगों ने क्या किया, एक्वायर कर लिया और 60 हज़ार लोगों को मरने दे दिया। तो ये सब कारण क्या होता है, लालच से होता है, ठीक है ना। इस पैरा में देखिए, however along with this argument we also have to accept that the definitely some relationship between poverty and high population growth rate, है ना। In 1974 the World Population Conference held in Bucharest, India has put forth before the global forum the idea that development is the best contraceptive। इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट ही सबसे बड़ा क्या है, उस पॉपुलेशन में रोक लगाने का तरीका है ना। कैसे, इफ देयर इज डेवलपमेंट द पॉपुलेशन विल ऑटोमेटिकली डिक्लाइन। इसका मतलब क्या है, जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा और पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। यहाँ पर इस बात को रखा नहीं गया है कि कैसे डिक्लाइन होगा। अब देखिए क्या, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट डेवलप्ड कंट्रीज वेयर द एजुकेशन एंड स्किल लेवल ऑफ द पीपल आर हाई, द हेल्थ केयर सर्विसेज आर इफेक्टिव, द चाइल्ड मोर्टालिटी रेट इज वेरी लो एंड द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ पीपल इज ऑल्सो हाई। It is often also observed in those countries that women have the freedom of right to take decisions regarding their life and occupation। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो रहा है क्या, इतना लेवल होने के बाद भी, इतना डेवलप होने के बाद भी, है ना, पॉपुलेशन तो डिक्लाइन नहीं कर रही है, लेकिन डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है ना। डेवलपमेंट क्या नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट तो डिक्लाइन हो रहा है दिन ब दिन। दिन दिन भारत देश की स्थिति गिरते चले जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते चले आ रहा है। तो पॉपुलेशन के बढ़ने से डेवलपमेंट में कोई लेन देन नहीं है। डेवलपमेंट इज सोनली डिपेंडेंट अपॉन दी सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल। इफ पीपल अभी करंटली क्या चल रहा है, लोग अपना नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए अदर लोगों को डेवलपमेंट का अवसर नहीं मिल पा रहा है। देखिए, वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑल थिंग्स इज डेट गिवन पीपल गिव बर्थ टू फ्यू चिल्ड्रन हियर। ऑन द अदर हैंड, इन कंट्रीज वेयर चाइल्ड मोर्टालिटी रेट इज हाई, जहाँ पर चाइल्ड मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है, वहाँ पेरेंट्स डू नॉट नो वेदर द चिल्ड्रन सर्वाइव और नॉट। वहाँ उनको पता नहीं होता कि उनके बच्चे जिएंगे कि नहीं जिएंगे। इसीलिए वे क्या करते हैं, 2 से ज़्यादा बच्चों को क्या देते हैं, जन्म देते हैं और उनके सर्वाइव के लिए प्रयास करते हैं। और वहाँ पर वैसी जगह में क्या रहता है, सिमिलरली जहाँ पर कंट्री में लो वेज है, जहाँ पैसा कम है, वहाँ चाइल्ड लेबर क्या होगा, परिवार की जरूरत बढ़ाने के लिए एक मददगार होगा, इसीलिए उनको पॉपुलेशन ज़बरदस्ती बढ़ा दिया जाएगा। भारत चूँकि आज़ादी के बाद बहुत गरीब देश था, तो लोगों ने अपने बच्चे 10 से 12 पैदा कर ले, ताकि फ्यूचर में उनकी परिवार की संभालने और उनको संभालने की क्षमता क्या हो जाए, चांसेस बढ़ जाएँ। टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइविंग द फैमिली इन द कमिंग फ्यूचर, पुअर कंट्रीज स्टार्टेड टू इंक्रीज द पॉपुलेशन बाय गिविंग बर्थ टू मल्टीपल चिल्ड्रंस। सो अलग अलग एस्पेक्ट में लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से क्या किया, इस्तेमाल किया। This is also one of the reasons for producing more children. Parents think that if they have more children, then the family income will be more. In societies where women are educated and free to live their life as they wish, they give birth to fewer children। देखिए, जहाँ महिलाओं को आज़ादी है ना, अपने जीवन को खुद से जीने का, वहाँ पर वो कम बच्चे पैदा करते हैं। चिल्ड्रंस वेयर हु बॉर्न आर वेल एंड केयर्ड फॉर। क्या, जब बच्चे पैदा भी होते हैं अपनी मर्जी से, हम लोग पैदा करते हैं, उनका ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात रहती है कि वे जिस उम्र में इसको पैदा करना चाहते हैं, कभी भी अपनी उम्र में पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चा जिया ना जिए, अब मर गया तो, या बच्चा बड़े मुश्किलों से पैदा होता है आजकल। जिन कंट्रीज़ में डेवलप वुमेन्स हैं, जॉब करने जाती हैं, बाहर घूम रही, अपने जीवन को अपने हिसाब से जी रही हैं, तो वे सभी प्रकार चीज़ों में आगे हैं। तो वे लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को अपने हिसाब जन्म देते हैं, मल्टीपल अबॉर्शन कराते हैं, है ना, अलग अलग हार्मोन्स और अलग अलग प्रकार की चीज़ें को लेते हैं। तो फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देने के लिए वो कॉस्मेटिक्स और ऑपरेशन सर्जरी पर डिपेंड हो जाते हैं। इनसे उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, डिक्लाइन हो जाती है, और बच्चे पैदा करने में क्या हो जाते हैं,
डिक्लाइन हो जाते हैं, उनकी पुअर हेल्थ हो जाती है। और जो बच्चे पैदा भी होते हैं बहुत ही कैसे होते हैं, कुछ न कुछ दिक्कतों से पैदा होते हैं। तो वहाँ पर हेल्थी ऑफस्प्रिंग्स नहीं है ना। 100 में से 99 लड़कियों को कैसा बच्चा पैदा, 90 लड़कियों को कैसा बच्चा पैदा हो रहा है, उनको सिजेरियन पेट काट के निकालना पड़ रहा है ना। वे लड़कियां कैसी हैं, अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी बर्थ देने के लिए सक्षम नहीं है। 100 में से 90 लोग, केवल 10 लोग फिजिकल लेवल करते हैं, वे लोग इसके लिए अवेलेबल हैं। तो उनकी बॉडी वीक थी तो उनको बच्चे भी वीक हो जाएंगे, मजबूत नहीं होंगे बच्चे, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, कुछ ना कुछ कारणों से दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो यूरोप हो गया है ना, वेस्टर्न कल्चर के लोग, जहाँ पर महिलाओं खुले प्रकार से रहते हैं, अपने जीवन को जीते हैं, वे लोग हर प्रकार की चीज़ों में इंडल्ज हैं, ड्रग्स से लेकर सभी चीज़ों में। और मल्टीपल अपने इंस्टेंट फैशन के लिए वे क्या करते हैं, कॉस्मेटिक्स और बहुत सी चीज़ें केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी स्किन अच्छा ऑब्जॉर्बर होता है, तो वे उनकी मृत्यु का कारण बनते हैं। जो आजकल बहुत सारे आपको बीमारियाँ दिख जाएंगी, खासकर ओवरी कैंसर हो गया है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सब किसी भी उम्र में कभी भी होता है महिलाओं को। तो सबसे बड़ा कारण होता है कॉस्मेटिक्स जो इस्तेमाल करते हैं और जो अनवांटेड सर्जरीज वो कराते हैं। इससे क्या होता है कि सबसे पहले उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, डिक्लाइन कर जाता है। एवरीथिंग इन द बॉडी इज डिपेंडेंट अपॉन द टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल्स इन द बॉडी, ठीक है ना। जैसा जैसा टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल का मार्किंग होते चले जाएगा, वैसा वैसा उनका ह्यूमन डेवलपमेंट और हेल्थ ऊपर नीचे होगा। दिस इज हाउ any development country does not depend upon the overall population of the country. Development depends upon the skill and efficiency of the people and how they use their and care for their education, health and economical welfares. Okay, so this is the chapter. इसके मॉड्यूलर क्वेश्चन बना लेना है आपको। इस क्वेश्चन को करेंगे यहाँ तक, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।